Good morning, our new student who enrolled in class 11th commerce stream. Today, I will tell you your accountancy subject divided into two parts, part A and part B. In part A, there are 8 chapters. You can see in your screen, there are 8 chapters. Chapter 1, which are related to the introduction of accounting, it means meaning, accounting information, objective, role and basic terms in accounting. In chapter 2, we will discuss theory base of accounting. Chapter 3, recording of transaction part A, recording of transaction part 2 included in chapter 4, bank reconciliation statement. Chapter 5, chapter 6 is trial balance and rectification of error. Chapter 7 related to the depreciation provision reserve, and chapter number 8 bills of exchange. So I hope you will understand the contents of the part A of accountancy subject. So we move to the chapter number 1, because in the last video we discussed in chapter 1 introduction to accounting, what is accounting, एंड मैंने इससे रिलेटेड आपको कुछ टर्म्स भी समझाए थे कि व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो नाउ वी विल मूव टू द chapter 1. The important topic of this chapter is basic terms in accounting. So let's start today's topic, that is basic terms in accounting. The first basic terms is entity. What is the meaning of entity? It means a reality that has a definite individual existence. Business entity means a specifically identifiable business enterprises like Super Bazaar, Hyatt Jewelers, ITC Limited, etc. An accounting system is always devised for a specific business entity, also called accounting entity. What is the meaning of entity? Entity means the business, the name of the business. You know very well, there are various kind of the entities जिसको हम उनके नाम से जानते हैं, जैसे लाइक बिग बाज़ार, सुपर बाज़ार, ज्वेलर्स, ITC, हिंदुस्तान लीवर, पेप्सी, कोका कोला. सो इट विल बी इनके कुछ नाम हैं. सो दिस कैन बी आइडेंटिफिकेबल बाय इट्स योर ओन नेम्स. सो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज़ द एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस विथ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एंड which is specifically identifiable business enterprises, जिन्हें हम उनके नाम से जानते हैं, उसे हम लोग entity बोलते हैं. Number 2 is transaction. What is a transaction? An events involving some value between two or more entities. It can be a purchase of goods, receipt of money, payment to a creditor, incurring expense, etc. It can be cash or credit transaction. In the last video we discuss what is transaction. Transaction means purchase and selling of the goods and services. दो एंटिटी के बीच में, एंटिटी मतलब इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, विच इज कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन. सपोज बिग बाज़ार ने सुपर बाज़ार से कोई सामान खरीदा और सुपर बाज़ार ने बिग बाज़ार को कोई सामान बेचा, तो दे आर टू एंटिटीज़ और उनके बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस इज नोन एज ए ट्रांजेक्शन. द थर्ड बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग इज एसेट्स. व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स. कोई भी ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स किसी भी एंटिटी का जिसे वो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, उसे एसेट्स कहते हैं. जनरली एसेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्ति.
व्हाट इज संपत्ति? संपत्ति हम किसे कहते हैं? जिसको हम ओन किए रहते हैं, जिनका पोजीशन मेरे पास होता है, जिसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी जनरेट कर सकते हैं, और उन एसेट्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। सपोज एक बिजनेसमैन के पास लैंड है, बिल्डिंग है, मोटर कार है, तो वो उन सबको क्या कहेगा? अपनी एसेट्स कह सकता है। नेक्स्ट, एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। अब वो उन एसेट्स का क्या कर सकता है? अपने बिजनेस में यूज़ कर सकता है। एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, सुपर बाजार ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स विच इज़ यूज बाय फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ्स। द ट्रक दस प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज and this item will be shown on the asset side of the balance sheet of the super bazaar. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स? जैसे इसमें बताया कि सुपर बाजार के पास एक ट्रक है, कई सारे ट्रक हैं, तो वो ट्रक का यूज़ किस लिए करता है? अपने सामानों को लोगों तक डिलीवर करने के लिए यूज़ करता है। तो उस एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो बिजनेस एंटिटी के पास कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे वो अपने इकोनॉमी जो भी उनके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है उनको करने में हेल्प लेता है, उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं। सपोज़ सुपर बाजार के पास एक लैंड है, तो उस लैंड पे वो क्या खोल सकता है? शॉपिंग मॉल खोल सकता है। मोटर बाइक है, कार है, उससे वो अपने कस्टमर को होम डिलीवरी कर सकता है। तो हम लोग उन सारी एसेट्स, उन सारी आइटम्स को क्या बोलेंगे सुपर बाजार की? इट कैन बी कॉल्ड एज अ एसेट्स ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी। तो आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में अब आ गई होंगी। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी डिफाइन द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। इट मीन्स ए स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकल बिजनेस एंटरप्राइज। जिस बिजनेस को जिस नाम से जाना जाता है उसको उसकी बिजनेस एंटिटी कहते हैं। एंड ट्रांजेक्शन, दो एंटिटी के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, कोई भी एक्सचेंज हो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो मॉनेटरी भी हो सकता है, यानी कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, नकद में भी खरीदते हैं, उधार में भी खरीदते हैं। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन हो रहा है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एंटिटी अपने बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जिस भी रिसोर्सेज का यूज़ करती है उसको अपनी क्या कह सकती है? एसेट्स कह सकती है। सपोज़ आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, सपोज़ क्या आप पढ़ते ही हैं स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल वाले आपको क्या करते हैं? एक रूम में आपको बैठा के पढ़ाते हैं। तो वो इस स्कूल का जो रूम है, क्लासरूम है, वो उसकी क्या होगी? स्कूल की एसेट्स होगी। तो स्कूल में जो फ़ैन लगा है वो स्कूल की क्या है? एसेट्स है, क्योंकि ऑल दोज रिसोर्सेज हेल्प्स टू परफॉर्म दी स्कूल ड्यूटी। स्कूल के फंक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, स्कूल के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सारी चीज़ें हेल्प कर रहे हैं। स्कूल के पास वैन होते हैं, बस होते हैं, तो ऑल दोज रिसोर्सेज कैटेगराइज इन द एसेट्स ऑफ दिस स्कूल। नाउ assets can be broadly classified into two types: current assets and non-current assets. What is current assets and what is non-current assets? So in this figure you can see there are basically two types of the assets: non-current assets and current assets. And non-current assets can be classified into 5 subcategories: fixed assets, non-current investment, deferred tax asset net, long-term loans and advance, and other non-current assets. On the other hand, the second types of the assets is current assets. It can be classified into 6 categories: current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalents, short-term loans and advance, other current assets. So the classification of the assets are as under. And fixed asset is also classified into 4 categories: tangible assets, intangible asset, capital work in progress, intangible asset under development. तो आप सिर्फ इस समय नाम जान लीजिए कि एसेट्स को 2 पार्ट में बांटते हैं: नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स के इतने पार्ट होते हैं, फिक्स एसेट्स के इतने पार्ट होते हैं, एंड करेंट एसेट्स के इतने पार्ट होते हैं। जैसे ही समय आएगा, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है तो उसका एक सही समय आता है, तो अभी शायद वो सही समय नहीं आया। सो जैसे ही वो सही समय आएगा, ये जो जितने भी काइंड्स ऑफ द एसेट्स हैं वे विल एक्सप्लेन टू यू। सो डोंट वरी, ऐसा मत समझिएगा कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया।
वो राइट टाइम आने पे वो आपके सामने एक्सप्लोर होता जाएगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म इज लाइबिलिटी। व्हाट इज लाइबिलिटी? Liabilities are obligation or debt that an enterprise has to pay at some time in the future. They represent creditor claim on the firm's assets, both small and big businesses, and find it necessary to borrow money at one time or one another, and to purchase goods on credit. What is liability? Liability means, simply what we can say, what is the meaning of liability? Any amount paid to the other, it is known as liability. कोई भी पैसा अगर आपको किसी और को देना है, कोई भी मनी किसी दूसरे को देनी, विच इज़ नोन एज लाइबिलिटी। मैं गया दुकानदार से 1,000 रुपये का सामान उधार खरीद के लेके आ गया, तो मेरे मन में होगा ना मुझे उसे को 1,000 रुपये देना है, तो इट इज़ माई लाइबिलिटी। सपोज बिजनेसमैन अपने होल सेलर क्या से 10,000 रुपये का सामान लेकर आया, 10,000 रुपीज़ की सामान लेकर आया, और उसने सिर्फ 5,000 रुपीज़ को दिया, कहा कि 5,000 रुपीज़ हम आपको 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, जब मेरा सामान बिक जाएगा कस्टमर मुझे पैसा दे देंगे तो मैं उसी में से ला के आपको दे दूंगा। तो उस बिजनेसमैन के लिए भी वो क्या है? लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी क्या होती है? एनी अमाउंट, डेब्ट्स, ऑब्लिगेशन विच हैज़ टू बी पेड एट सर्ट टाइम इन द फ्यूचर, जिसे फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम में प्रोवाइड करना है। और लाइबिलिटी के भी उस तरह से टाइप्स हैं, non-current liabilities and current liabilities. And now non-current liabilities divided into 4 parts: long-term borrowing, deferred tax liability, other long-term liability, long-term provisions. And current liabilities can be categorized into 4 categories: short-term borrowing, trade payables, other current liability and short-term provisions. Okay? तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बात करें ना, तो ये कह सकते हैं एंटिटी मीन्स entity, a definite individual existence. It means a specifically identifiable business enterprises, and it is always devised for a specific business entity. Okay? Transaction, events involving some value between 2 or more entities. Purchase of sales, purchase of goods, sale of goods, receipt of money, payment to creditor. Assets, any economic resources of an enterprise or entity that can be usefully expressed in monetary terms. And liability, obligation or debt that an enterprise has to pay at some time in the future. सो हम लोगों ने 4 बेसिक टर्म स्टडी कर लिए, उसको सब बेसिक समझ के अभी स्टडी करिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो जितना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो जब भी हम किसी नए सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं ना, जिसका आपका पास से कोई लेना देना नहीं होता है, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना उसकी बेसिक चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट वन इज कैपिटल। व्हाट इज अ कैपिटल? सिंपल वर्ड, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। आप बिजनेसमैन हो, इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या बनाया था, याद होगा? मैंने आपको बनाया था एक मेडिकल शॉप का ओनर बनाया था। क्या आपने एक छोटी सी मेडिकल शॉप खोल ली है और आप बिज़नेस कर रहे हो, तो बिज़नेस क्या ऐसे ही हवा में उड़ने लगेगा? नहीं सर, उस बिज़नेस को रन कराने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, तभी तो जाकर हम होल सेलर से मेडिसिन ले आके अपनी दुकान खोल पाएंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट अ बिज़नेस, तो आप बिज़नेस में क्या लगाते हो? 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीज़ बिज़नेस में लगाते हो, एंड दिस इज़ नोन एज द कैपिटल। द नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस definition, it may be brought in form of cash or assets by the owner for the business entity. Capital is an obligation and the claim on the assets of the business, therefore shown as capital on the liability side of the balance sheet. ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। What is the meaning of capital? Amount invested by the owner in the firm is known as capital. ओनर का जो बिजनेस का जो ओनर होता है, वो बिजनेस में जितना पैसा लगाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। बट ये कैपिटल, ये अमाउंट कैश में भी इन्वेस्ट हो सकती है एंड एसेट्स में भी इन्वेस्ट हो सकती है। सपोज हमने पहले 1 लाख रुपए की ज़मीन ली, तो हमने बिजनेस में क्या लगाया? एसेट्स। फिर उसमें मकान बनवाया,
बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास AC LED शोरूम की तरह एकदम फर्स्ट क्लास मैंने शॉप बनवाई अपनी मेडिकल शॉप। तो मैं उसमें क्या लगा रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन पैसा कैश के फॉर्म में लगा रहा हूँ, एसेट्स के फॉर्म में लगा रहा हूँ? सर एसेट्स के फॉर्म में लगा रहा हूँ। तो उसमें AC लगवाया, पंखा लगवाया, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कराए, उसमें ऑल एल्युमिनियम वर्क कराया ताकि वो देखने में अच्छे लगे। फिर उसके बाद मैं कैश उसमें 1 लाख रुपए लगाया और गया और होलसेलर से सामान लेके आया। सो ओनर ऑफ द बिजनेस कैन बी इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस इन कैश फॉर्म और इन एसेट्स फॉर्म। वो बिजनेस में एज अ कैपिटल कैश भी बिजनेस में लगा सकता है और एसेट्स भी लगा सकता है। ओके, सो आई होप कैपिटल समझ में आएगा। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ today's video is sales. What is sales? Sales are total revenues from the goods and services sold to or provided to the customer. It may be cash sales or credit sales. What is sales? हमने बिजनेस खोला है, AC लगवाया है, पंखा लगवाया है, क्यों लगवाया है? मेडिसिन ला के रखा है, क्यों रखा है? ताकि कस्टमर आएंगे और हमसे सामान लेके जाएंगे। तो what is sales? Sales means total revenues from the goods and services sold or provided to the customer. आपने जो बिजनेस खोला हुआ है, जो गुड्स, आप गुड्स मीन्स व्हाट, आपके लिए मेडिसिन क्या हो गई? गुड्स हो गई, क्योंकि आप उसको बेचोगे और पैसा कमाओगे। 10 रुपये की मेडिसिन होलसेल से ले आओगे और यहाँ के रिटेलर को, यहाँ के कस्टमर को कितने में दोगे? एज ए रिटेलर आप कितने में दोगे? 15 रुपये में दोगे। तो 5 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, 5 रुपये आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है, प्रॉफिट। तो सेल्स का मतलब सिर्फ प्रॉफिट से नहीं होता है। सेल्स का मतलब होता है द टोटल वैल्यू रिसीव्ड from the sale of goods and services to the customer. The amount of business earned by selling its products or providing services to customer called sales revenue. Other item of revenue common to many business are commission, interest, dividend, royalty, rent received. Revenue is also called income. You know what is income? Income मतलब जो पैसा मिलता है। तो हर बिजनेसमैन को अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने पे, सेल करने पे जो भी इनकम मिलती है, जो भी पैसा मिलता है, दिस इज़ नोन एज रेवेन्यूज़। इसके अलावा अदर तरह की भी रेवेन्यूज़, इनकम को हम लोग जानते हैं, जैसे कि कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, रॉयल्टीज़ मिल गई। तो दीज आर नोन एज रेवेन्यूज़। द नेक्स्ट बेसिक एडजस्टमेंट इज एक्सपेंस। व्हाट इज एक्सपेंस? कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस in the process of earning revenue are known as expense. रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए हम जितना भी कॉस्ट बियर करते हैं, जितना भी पैसा खर्च करते हैं, विच इज़ नोन एज एक्सपेंस। यू नो कि कोई भी बिजनेसमैन किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो पहले वो उस प्रोडक्ट को बनाता है, उसके बाद उसको बेच के रेवेन्यू अर्न करता है। तो उसका एम क्या होता है? सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा। यानी व्हाट इज एक्सपेंस? एक्सपेंस मीन एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू अर्न करने के लिए हम जो भी पैसा खर्च करते हैं, विट इज़ नोन एज एक्सपेंस। Generally, expenses are measured by the cost of assets consumed or service used during an accounting period. The usual item of expense are depreciation, rent, wages, salaries, interest, cost of heater, light and water, telephone. Yani when we produce any types of product and services, then in such case we wait some amount for the production of the goods and services, like depreciation of the goods, rent, wages, salaries, interest, cost of heater. So this it will be known as the expense. The second term is expenditure. What is expenditure? Sending money or incurring a liability for some benefit, service or property received is called expenditure. Spending money or incurring a liability for some benefit, services or property received is called expenditure. Expenditure, एक्सपेंस क्या होता है? हम लोग एक्सपेंस क्यों करते हैं? एक्सपेंस करने से क्या होता है? देखिए मैं सिंपल सी बात बता रहे हैं आपको। फ्यूचर में हमें क्या होती है? इनकम होती है। एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर से क्या होता है? एक्सपेंडिचर से ये होता है, जैसे आपने सुना होगा कि हमने कोई एसेट्स खरीद ली,
एसेट से क्या होगा, हमको बेनिफिट मिलेगी, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। जैसे गुड्स खरीद लिया, तो गुड्स से हमें बेनिफिट क्या होगा कि उससे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको सेल करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। मशीन खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, दीज आर नोन एन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस का मतलब होता है जनरली वो सारे खर्चे जो हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जैसे कोई भी खर्चा जो हम लायबिलिटी को पे करने के लिए कहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या सर्विस लेने के लिए खर्च करते हैं जिससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिले। इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जीक्यूटिव विद इन अ ईयर। इट इज़ ट्रीटेड एन एक्सपेंस ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी खर्चा हम कर रहे हैं और उसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर ही मिल जाए, तो उसे हम लोग एक्सपेंस के क्राइटेरिया में रखते हैं। और अगर कोई खर्चा, एनी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर नहीं, एक साल से ज़्यादा साल में मिलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो नाउ एक्सपेंडिचर विल बी क्लासिफाइड इनटू टू टर्म्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नोन एज एक्सपेंस। एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी बेनिफिट हमें उसी साल मिल जाती है जिस साल उसे खर्च करते हैं, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट उस साल नहीं मिलता। सपोज मैंने एक महीने के लिए एक बंदे को अपने घर पे रखा, तो उसको 5000 की सैलरी दी, तो एक महीने की वो मुझे बेनिफिट देगा, तो मैं जो सैलरी दे रहा हूँ उसको, वो मेरा कैसा एक्सपेंडिचर है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका बेनिफिट मुझे एक ही महीने मिलेगा, यानी एक साल के अंदर है। सपोज आई परचेज अ AC, 50,000 रुपीज़ की एसेट AC खरीद लिया, क्या उसकी बेनिफिट हमें सिर्फ करेंट ईयर में ही मिलेगी? नहीं सर, वो तो 4-5 साल चलेगा आपका। सो एक्सपेंडिचर में दो टर्म आता है, एनी एक्सपेंस, बेनिफिट derived from these expenses in a single year, so it will be treated as expense. An expenditure which benefits last for the more than 1 year, it will be known as the capital expenditure. Now we will move to the profit. What is profit? The excess of revenues of a period over its related expense during an accounting year is profit. Profit increases the investment of the owner. What is profit? जैसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू मीन्स व्हाट? रेवेन्यू मीन्स अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचने से जो पैसा मिलता है, विच इज नोन एज रेवेन्यू। एंड एक्सपेंस मीन्स व्हाट? किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में, उसे सेलेबल बनाने के लिए, ताकि वो बिक सके मार्केट में, जो भी खर्च करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। सो सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट था जिसको मैंने 15 रुपीज़ में सेल किया, उसको बनाया 10 रुपीज़ में, नाउ विल प्रॉफिट विल बी 5। सो प्रॉफिट का मतलब विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस। एंड नेक्स्ट इज गेन। व्हाट इज गेन? A profit that arise from events or transactions which are incidental to business, such as sale of fixed asset, winning a court case, appreciation in the value of an assets. गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अपनी बिजनेस की एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपये का सामान बेच रहे हैं और 10 रुपये में उसको बनाएं, सो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 रुपये। लेकिन गेन का मतलब क्या होता है? हम बिज़नेस जब करते हैं तो कुछ ऐसे भी इनकम हमको होती रहती है, कुछ ऐसे भी प्रॉफिट हमको होती रहती है जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होती है। जैसे हम कोर्ट में कोई केस लड़ रहे थे और कोर्ट में केस जीत गए और कोर्ट का जजमेंट ये आया कि हमें 10 लाख रुपीज़ का क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। सो इट इज़ अ गेन। सपोज मेरे बिजनेस के पास 5 करोड़ रुपए की एक ज़मीन थी जो 7 करोड़ रुपए में बिक गई, तो 2 करोड़ रुपए बिजनेस को क्या होगा? गेन। क्योंकि वो बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुआ, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करके, प्रोवाइड करके कस्टमर से हमने नहीं रिसीव किया। सो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट आर रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी, व्हेयरएज द गेन इज रिलेटेड टू द नॉन बिजनेस एक्टिविटी, इट इज़ इंसिडेंटल टू बिजनेस। व्हाट इज लॉस? सर आप लोग बात जनरली यूज़ करते हैं, लॉस हो गया, हमको ये हो गया, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉस? The excess of expense of a period over its related in revenues, it is termed as a loss.
It decrease in owner's equity. It also refers to the monies and monies what lost without receiving any benefit in return. कभी कभी क्या होता है, when we produce of any goods or providing any services, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो उसकी रेवेन्यू से ज़्यादा होती है. जनरली ये तब होता है जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है. सो लॉस सिचुएशन, लॉस हम लोग कहते हैं कि लॉस विच आर रिलेटेड टू द, कि हमें लॉस हो गया. तो हम कैसे कहेंगे, हाउ वी कैन से डैट कि हमें लॉस हो गया, व्हेन द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज हायर देन इट्स रेवेन्यू, इट्स प्राइस. हम 15 रुपये में सामान बेच रहे हैं जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है, 20 रुपये. तो 5 रुपये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज डिस्काउंट. व्हाट इज डिस्काउंट? जनरली आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकानों पे बोर्ड लगा होता है 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट. तो डिस्काउंट मीन्स व्हाट? Discount means it is a deduction in the price of the goods sold. It is offered in a two-way, offering deduction of agreed percent of the list price at the time selling goods is one way of giving discount. Such discount is called trade discount. जब आप कोई दुकान पे शॉपिंग करने जाते हैं तो सेलर आपको क्या देता है, 10%, 5%, 2%, 15%, 20% का एक सीधे सीधे आपको डिस्काउंट दे देता है. सिंपल सी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट? डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड. डिडक्शन या रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड. जो गुड्स सेल करता है तो सेलर प्राइस जितना कम चार्ज करता है, विच इज़ नोन एज डिस्काउंट. 100 रुपये का सामान है, आपको 98 में दे रहे हैं, तो 2 रुपीज़ आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट. लेकिन डिस्काउंट के भी 2 टाइप्स होते हैं. पहला टाइप्स होता है कि व्हेन डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सेलर टू द परचेजर. बस सिंपल सी बात, सेलर अपने मन से परचेजर या कस्टमर को क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है. तो विच इज़ नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. जनरली आप देखते हैं मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है होलसेलर को, होलसेलर प्रोवाइड टू रिटेलर, एंड रिटेलर प्रोवाइड टू द कस्टमर. ओके. तो समटाइम्स क्या मैक्सिमम केस में आप देखते हैं कि जो MRP होती है उससे आपको कम दाम पे सामान मिलते हैं मार्केट में. तो विच इज़ नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. आपको कहना भी नहीं पड़ता है अरे भैया कुछ कम कर लो, वो कहता है अरे हमने खुद कम कर लिया. वो कुछ कम नहीं कर रहा है, वो आपको ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में भी उसकी सेलिंग प्राइस वही चली रही है. तो जनरली प्राइस ऑफ द गुड्स से जितने कम प्राइस पे सेलर अपना गुड्स सेल करता है कस्टमर को, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. एंड सेकेंड इज़ अ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कस्टमर जो सेलर होता है वो 2 तरह से गुड्स को सेल करता है. कैश भी बेच सकता है, क्रेडिट भी बेच सकता है. तो इस बार उसने कैश की जगह क्रेडिट सेल्स कर दिया और 1 महीने का टाइम दे दिया. 10,000 का मैंने सामान बेचा है, 1 महीने के अंदर मुझे 10,000 रुपीज़ वापस कर देना, मतलब मेरा पैसा दे देना. कस्टमर 15 डेज़ के अंदर ही आया और क्या मेरे पास 10,000 नहीं है, इस समय मेरे पास 9,900 रुपीज़ है, दे दूँ? कहेगा हाँ दे दो, क्योंकि बिजनेस का एक रूल है जितना मिले उसको रख लेना चाहिए. तो 100 रुपीज़ विल बी ट्रीटेड एज कैश डिस्काउंट. मैंने इसको स्टोरी वाइज समझाया है. कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि इट एक्ट्स एन इंसेंटिव दैट इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट टू बाय द डेटर. यानी कस्टमर को इनिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो क्या करें, जल्द से जल्द पैसा दे दें. उनको इनिशिएट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है. सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज डिस्काउंट. रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड गुड्स सोल्ड. इट ऑफर्ड इन 2 वे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय द seller to the customer, and it is generally given by the manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer, and retailer to customer. And what is cash discount? Cash discount given at the time of payment of the amount due by customer, which acts as an incentive to encourage prompt payment by the debtor. So I hope कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया
रेवेन्यू, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गेन, लॉस एंड डिस्काउंट। सो ये हम लोगों ने 7 बेसिक टर्म्स आज डिस्कस किए। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और प्लीज़ इन सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के आप लोग नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। एंड प्लीज़ स्टडी करिए PDF लेकर, अदर बुक्स की हेल्प लेकर। इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट्स सो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।